Welcome to KBC. Now we are going to discuss about heterotrophic mode of nutrition. जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अपना फिनिश किया है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा about photosynthesis. What is photosynthesis? Site of photosynthesis, mechanism of the photosynthesis, conditions related with the photosynthesis and several experiment. जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी सेकंड, और हमने एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी उसमें किया जिसमें बताया गया है टू डेमोन्स्ट्रेट लाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Heterotrophic nutrition. So here, this word heterotrophic derived from Greek words that is heteros means other and troph means nutrition. तो जो हेटेरोट्रॉफिक शब्द है, ये शब्द जो है derive from Greek word that is heteros, that means other, and troph, that means nutrition. It is so simple to understand the concept of the heterotrophic mode of nutrition. That means any kind of the organism, if incapable to manufacture their food by themselves, that means when the organism depend on the other organism for their diet, for their food, for their nutrition, incapable to manufacture their food by themselves, depend on the other, heteros, अदर न्यूट्रिशन, तो अपने पोषण के लिए जब किसी दूसरे पे वो निर्भर होता है, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड सच ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड दी हेटेरोट्रॉफ्स. तो ये हमारे हो जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव पे निर्भर होते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उनका न्यूट्रिशन प्रोसेस और ऑब्टेनिंग ऑफ द न्यूट्रिशन, सच मेथड कॉल्ड द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड सच ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. Again, we already know organisms are not similar. Organisms are not similar in their structure, in their body design, in their habit, in their habitat. That means availability of food. अलग अलग तरीके के जीव, अलग अलग तरीके के उनके बॉडी डिजाइन, अलग अलग तरीके की उनका एडेप्टेशन या अलग अलग तरीके का भोजन की उपलब्धता, सब एक जैसे नहीं. A huge diversity in our living world. Therefore, organism designed for the nutrition, obtaining nutrition from the several of the different habitats. जो ऑर्गेनिज्म है उसको नेचर ने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है that can use up their surrounding, वो अपने सराउंडिंग का उपयोग कर सके और जो भी भोजन वहां आसपास में उपलब्ध है उनका वह उपयोग कर सके. तो इस कारण से जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर purpose of food or nourishment. Some organism depend on the dead decaying organic matters. सड़े गले पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से वो अपना भोजन प्राप्त कर सकता है. Some organisms obtain their food from their external environment and in its solid form. कुछ जीव जो है वो अपने बाहरी वातावरण से ingest their food in solid form, सीधे ठोस रूप में वो भोजन को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं. तो अलग अलग तरीके के जीव देखे जा सकते हैं जिनका भोजन करने का तरीका भी अलग अलग होगा. तो इसके आधार पे जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके भी कई टाइप बताए गए हैं. उसमें आपने पढ़ना क्या है, ठीक है, जो 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ने हैं वो आपका आता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. Now we have to understand these different terms related with the heterotrophic mode of nutrition, that is parasitic mode of nutrition, saprophytic mode of nutrition, symbiotic mode of nutrition, and the holozoic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition, when the organism depend on the living organism or lives alive protoplasm, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइटिक बोलते हैं. पैरासाइट, such organism called the parasite, and such mode of nutrition called the parasitic mode of nutrition. इसमें क्या होता है, one partner benefited and another partner harmed. That means जो पार्टनर बेनिफिट, जिसको लाभ होता है, one partner benefited, तो a partner who benefited also termed as parasite or the host.
सॉरी गेस्ट, सच पार्टनर कॉल्ड द पैरासाइट और द गेस्ट, उसको हम लोग पैरासाइट या गेस्ट बोलते हैं। एंड अनदर पार्टनर, दैट पार्टनर हार्म्ड, सच पार्टनर कॉल्ड और टर्म्ड एज होस्ट। तो जो पैरासाइट है वो गेस्ट है और वो क्या करेगा, बीमारियां पैदा करेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीजेस इन होस्ट, जो होस्ट है उसमें वो बीमारी पैदा करेगा विदाउट किलिंग देम, ये नहीं जरूरी है कि उसको जान से मार ही दे। एज फॉर एग्जाम्पल लाइक दी टिक्स, ब्लड सकर्स, हमारे बालों में जू पड़ जाते हैं या मवेशियों में पड़ जाते हैं, खून निकालते हैं। लीच, कस्कूटा का एग्जाम्पल आपके प्लांट के केस में आता है, वहां पे हो जाता है, जो पौधे को कमजोर बना देता है। कस्कूटा, अमरबेल जिसे बोलते हैं। एंड पैरासाइट इन आवर इंटेस्टाइन लाइक वर्म्स, टेपवर्म्स, तो ये सब पैरासाइट के एग्जाम्पल आ जाए। तो इस पैरासाइट में जो बीमारी पैदा करता है वो आपका क्या है, वो गेस्ट है जिसे पैरासाइट कहा गया। और दूसरा जो बीमार होता है वो क्या है, वो गेस्ट, होस्ट है। अगेन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या देखते हैं, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सबस्टेंस और मैटर। हम यहाँ करेंगे कि सड़े गले मृत पदार्थ बोलेंगे, वो जीव नहीं है, मतलब कभी जीव था, मर गया। तो सच what will happen after the death of the organism? Their body decomposed with the help of saprophytic organisms or the saprotrophs, उसको हम लोग बोलते हैं saprotrophs, parasitic saprotrophic, saprotrophic, ठीक है, इसको सुधार लेंगे आप, पैरासाइटिक सैप्रोट्रॉफिक। तो सैप्रोट्रॉफिक जो होंगे वो क्या करेंगे, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनका काम क्या है, डिकम्पोजिशन, ये चीजों को, सड़े गले चीजों को से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दैट मीन्स दे डाइजेस्ट देयर फूड आउटसाइड द बॉडी लाइक द फंगस, लाइक दिस। ये आपका हो गया फंगल थाइलस माइसेलियम एंड दिस माइसेलियम, ये हो गया आपके लाइक दी ब्रेड। यहां से क्या है, दिस वन सिक्रेट द एंजाइम्स आउटसाइड द ऑर्गेनिक मैटर एंड डिकम्पोज देम। डिकम्पोजिशन इज जस्ट लाइक द डाइजेशन। So digestion take place outside the body and after the digestion of the food it also absorb them. ये क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है इन सिंपलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म, and then absorbed by the mycelium और इट्स थैलस, इसके थैलस के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और यहाँ से इसका न्यूट्रिशन का काम हो गया। तो जो डाइजेशन, इसीलिए बोलते हैं कि जो फंगस है, फंगस हैविंग आउटसाइड स्टमक, बाहर की तरफ में चीजों को पचा करके डाइजेस्ट करते हैं। तो ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया एंड सच ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द सैप्रोट्रॉफ्स। अगेन सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक में हम क्या देखते हैं, इट इज एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में बी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के होंगे और इसमें क्या होंगे, तो स्पीसीज क्या, ऑर्गेनिज्म ही दूसरे हो सकते हैं, किंगडम भी उनका चेंज हो जाएगा, ठीक है, किंगडम भी चेंज हो जाएगा। तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, दो अलग अलग जीव एक साथ में रहते हैं। इट इज अ एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बेनिफिट टुगेदर। दो अलग अलग जीव एक साथ में रहते हैं और एक साथ में रहेंगे और दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करेंगे, बेनिफिट्स टुगेदर। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड द सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये एसोसिएशन है दो अलग अलग जीवों। एज फॉर एग्जाम्पल लाइकन्स इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इन विच इट इज अ एसोसिएशन, एल्गल एंड फंगल एसोसिएशन। इसमें एल्गी और फंगस एक साथ में रहते हैं, जिसमें क्या है, रीजन वेयर लेस वाटर कंटेंट अवेलेबल, तो पानी कम होगा तो एल्गी जो है वो मर जाएगा, लेकिन वहां फंगस उसके साथ में रहेगा तो फंगस वहां पे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। एल्गी क्या करेगा, तो फूड का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो दोनों एक साथ में रह सकते हैं। इसके अलावा भी हम कई तरीके के एग्जाम्पल्स और भी नेचर में देख सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, लाइक दी और कैटल्स। तो कैटल्स हैं, कैटल्स चल रहे हैं तो वहां पे कैटल्स को परेशानी किस चीज से है, तो कैटल्स सफर करते हैं और टिक्स, ब्लड सकर्स, तो कोई दूसरी चिड़िया आती है उसको पकड़ करके खा जाती है, दोनों का फायदा हो गया, दोनों के दूसरे से राहत मिल जाते हैं। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। या फिर हम क्या देखते हैं, इन केस ऑफ
कई बार देखे गए हैं कोरल्स हैं, कोरल्स के साथ में एल्गी का एसोसिएशन पाया गया है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दो जीव एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, सीधी सी बात है, बोथ पार्टनर्स बेनिफिट टुगेदर। अगेन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या देखते हैं, तो इट इज ऑल्सो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बट इट इज फार डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ दिस। इससे एकदम से ये अलग सा है। किस तरीके से, तो इन दिस सिस्टम और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड इन इट्स सॉलिड फॉर्म इनसाइड देयर बॉडी। ये सीधे भोजन के ठोस स्वरूप को अपने शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं। एंड स्पेशली दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑकर्स इन एनिमल्स ओनली। ये एनिमल्स में ही मुख्य रूप से पाए जाते हैं, या किंगडम एनिमलिया में जो कुछ भी आता है, along with the protozoans, unicellular organisms और एनिमल्स। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, ये सीधे सॉलिड फूड को इंजेस्ट करता है, निगलने की प्रवृत्ति को रखता है। एंड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देयर इज प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल वेयर फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड, देन absorption of the nutrients, and after the absorption undigested food also egested from the body. So this is the key feature of the holozoic mode of nutrition. ये इसका सबसे मुख्य एग्जाम्पल आ जाता है। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो जाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉफिक के सब पार्ट्स आ जाते हैं। तो ये सब कुछ दिया गया है, तो ये समझने के लिए है। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द रिलेटेड नोट्स। इसके जो नोट्स हैं वो मैंने बना रखा है फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक, वहां पे आपको लिंक में दिया जाएगा। तो ये हमारे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो आगे बढ़ेंगे उसमें आगे हम लोगों को चलना है न्यूट्रिशन इन अमीबॉइड सेल और द यूनिसेलुलर और एनिमल्स। उसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो किस तरीके से यूनिसेलुलर में कैसे होगा, एंड द इन मल्टी सेलुलर लाइक द ह्यूमन है। हम लोगों में डाइजेशन या न्यूट्रिशन का क्या किस तरीके से फंक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।